Hello students, how are you? I hope all are fine and uh, could be stressed for the exams, right? That you have exams now in May, ठीक है? Still you have time, but जो हमारा पूरा साल का सिलेबस था in just 2 months you have to do, ठीक है? So I have come up with the assertion reasons of the chapters of physics, ठीक? Class 12. So what I think is if we know the assertion reasons हमारे basics बहुत clear हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि assertion reason is all about the basics. So I have come up with that and अगर तुम उसको ध्यान से समझोगे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? assertion reason I can say that it is true, it is false, I can do that, but fully detailed assertion reasons to clear your concepts only. So the main motive is to clear your concepts, that's all. So let us start, and I have that in PDF form now, right now. So I will share the PDF to you. Okay, let's see what is our first assertion. It says that the electrostatic force increases with decrease the distance between the charges. So the force will increase if we decrease the distance between the charges, right? And it is very true. Again, our assertion is true because we know that F is equal to K Q1 Q2 by D square. I'll rather use D than R because R से थोड़ा confusion हो जाती है with radius to the students. So I'll use D. Hence, अगर हम चार्जेस को दूर दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है, चार्जेस दूर जाएंगे तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो डिक्रीज होगी बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, राइट? तो ये हमारा assertion है और ट्रू है, ठीक है? Then the reason says the electrostatic force of attraction or repulsion between any two stationary point charges is inversely proportional to the square of distance between them. So yes, ये भी true है कि हमारा जो reason है, reason is also true that force is inversely proportional to the square of distance between the 2 point charges. And then is it the reason of the assertion? Yes. That means हमारा आंसर A आएगा. A जनरली हमें पता है क्या होता है, that both assertion and reason is true and reason is the correct explanation of the assertion. ठीक है? तो this was our first assertion. शुरू में easy है, बहुत easy है, ठीक? आगे चलेंगे अब. So second, the Coulomb force between 2 point charges depend upon the dielectric constant of the intervening medium. So पहले assertion लिख रहा हूँ मैं, that force depends, okay, sign नहीं डालूंगा, depends on dielectric constant. ठीक है? dielectric constant either used kappa K और epsilon R, ठीक है? So dielectric constant होता क्या है? Dielectric constant is our constant which is a relative epsilon, relative basically permittivity, ठीक है? So इसमें क्या है हमारे पास कि मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा कि फोर्स कैसे डिपेंड करते हैं मीडियम पे, वो हमें कैपा देता है, ठीक है? Suppose I have कि दो चार्जेस हैं, they are in vacuum, then they will apply more force on each other, or if we have same two charges and they are then placed in some medium, ठीक है? Medium like air, water, anything thicker than the vacuum obviously, ठीक है? So उस पर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली करता है कि एक एग्जांपल है कि अगर मैं स्ट्रेट किसी को हिट करूं तो उसको ज़्यादा
हिट होगा उसको ज़्यादा लगेगी, या इफ आई हिट हिम एंड ही हैज़ वेयर्ड जैकेट्स, स्वेटर्स एंड ऑल दोज थिंग्स ऑन हिज और हर स्किन, ठीक है। सो अगर मैं किसी को हिट कर रहा हूँ डायरेक्टली फोर्स ज़्यादा लगेगी, ठीक है, हिट कर नहीं रहा मैं, सो डायरेक्टली फोर्स ज़्यादा लगेगी। सो वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर हम डायरेक्ट फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा लगेगी, किसी मीडियम में रख देंगे तो वो फोर्स चेंज होगी, कम होगी वैक्यूम से, है ना। कैसे कम होगी? ऑब्वियसली जैसे हमने देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वो, कि अगर हम मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज कर देंगे उसका, सो वो फोर्स जो है वो कम हो जाएगी और ज़्यादा कम हो जाएगी। बहुत जो बड़ा लेक्चर हो जाएगा अगर मैं पूरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझाऊं, सो बस इतना सा इनफ है। एक वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं मीडियम को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81, सो अगर मैं चार्जेस को वाटर में रख रहा हूं तो उसकी फोर्स 81 टाइम्स कम हो जाएगी, या अगर मैं कहूँ 1/80 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज फोर्स इन वाटर या मीडियम इज वैक्यूम अपॉन 81, जितनी भी वैक्यूम में थी उससे 81 टाइम्स कम हो गई, या आई कैन से 81 m इज f दिस, ठीक है। और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट करते हैं कैपा से, ठीक। सो इसका अगर मैं एक रिलेशन निकालना चाहूं, सो इट इज दिस F0/K, ठीक है। और एप्सिलॉन की टर्म्स में अगर इसका रिलेशन निकालना चाहूं, बिकॉज आई सेड दिस इज रिलेटिव एप्सिलॉन, सो इट वुड बी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि दो चार्जेस ले लिए मैंने, 1/4πε0 Q1 Q2 दो चार्जेस है, एंड उनके बीच में डिस्टेंस है d²। मैंने मीडियम में रखा तो वो एप्सिलॉन आ जाएगा या एप्सिलॉन m आ जाएगा, और अगर वैक्यूम में रख रहा हूं तो 1/4πε0 Q1 Q2/d²। चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, फर्क क्या पड़ रहा है, एक बार मीडियम में रखा है, एक बार नहीं रखा। सो ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं देन आई विल गेट k अपॉन एप्सिलॉन m is 1/ε0 और kappa is एप्सिलॉन m/ε, ठीक है। ये रिलेशंस हैं कुछ जो मुझे लगता है कि तुम याद कर लो तो बेटर होगा, इसलिए समझा दिए, ठीक। द मेन थिंग वाज यस फोर्स डिपेंड अपॉन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, असर्शन हमारा ट्रू था। अब रीजन पे आते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर असर्शन ही भूल गए, कहां पे थे आप? सर असर्शन ट्रू है, ठीक। क्या है इसमें कि अगर हम जो डाइलेक्ट्रिक फोर्स, जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, ये रीजन था और ये ट्रू है, ये असर्शन था, ये ट्रू है। रीजन, कूलम फोर्स वेरीज इनवर्सली विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, अभी किया। सो इट वेरीज इनवर्सली, यस, जितना हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करेंगे उतनी फोर्स कम होगी। सो रीजन इज ऑल्सो ट्रू। इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? Yes. Okay. So yes, A is the answer, that assertion is true, reason is true, and reason is the correct explanation of the assertion. Right? Then third, ठीक है, था ज़्यादा नहीं है, मैं फिर कहूँगा ये कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मैं थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि बेसिक्स क्लियर कर लूँ मैं तुम्हारे, जो 12th में थोड़ा ऑनलाइन की वजह से धूल पड़ गई है माइंड में, वो बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ सिर्फ। देन द नेक्स्ट इज थर्ड, द चार्ज गिवन टू अ मेटेलिक स्फीयर डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर इट इज होलो और सॉलिड। सो assertion is charge on sphere does not depend whether it is solid or hollow. Is it true? Yes, it is true. Why? Because charge basically
ऑन अ मेटेलिक स्फीयर ओनली। ऑन द मेटेलिक स्फीयर तुमने देखा होगा कि चार्ज हमेशा जो है वो ऑन द सरफेस आ जाता है, ठीक है। मेटेलिक स्फीयर में कभी भी चार्ज इनसाइड नहीं रहता, हमेशा इट मूव्स टू द बाउंड्री, टू द सरफेस ऑफ द मेटेलिक चार्ज। सो यस, इट इज ट्रू कि वो सॉलिड और होलो पे डिपेंड नहीं करता, हमेशा सरफेस पे आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चार्ज है हमारे पास, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो वो आपस में, बिकॉज इन अ मेटल बॉडी चार्जेस विल कैन मूव, ठीक है। सो बिकॉज दे कैन मूव, तो वो क्या होते हैं कि एक दूसरे से रिपेल हो के, अगर एक से डिस्टेंस ज़्यादा है दूसरे से डिस्टेंस कम है, तो एक ऐसा इक्विलिब्रियम बनता है उसमें कि सारे चार्जेस फेयर पे आ जाते हैं, ठीक है। सो यस, इट इज ट्रू। रीजन, द चार्ज रिसाइड्स ओनली एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो जो समझाया था वही निकला। सो रीजन, चार्ज ऑन सरफेस। ये तो सारे ट्रू वाले आ रहे हैं। चलो, सो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, एंड इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। थर्ड, फोर्थ, ओके। अच्छा, एक मुझे याद आ रही है, शायद आगे कहीं काम भी आ रहा है, कोई असर्शन रीजन ऐसा हो भी कि हमें हमेशा एक कहा जाता है कि व्हेन इट इज लाइटनिंग, ट्री के नीचे नहीं जाना, खुलेआम भी नहीं घूमना, हमेशा इट इज बेटर टू सिट इनसाइड द कार, ठीक है। क्यों? बिकॉज चार्ज विल रिमेन ऑन द सरफेस ओनली, इनसाइड हमेशा हम बच जाएंगे, हम अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि हमें क्या है, वी हैव टू सिट इनसाइड द कार। सेकेंड थिंग, अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है, ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें सिक्योर करना है, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे रख देंगे मेटेलिक स्फीयर के अंदर, राइट, क्योंकि सारा चार्ज तो ऊपर आ जाना है। अच्छा, ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया बेसिकली कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक? ये भी हम आगे करेंगे, चलो आगे करेंगे कि इनसाइड द मेटल जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होती है, राइट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ असर्शन पे हम फोर्थ असर्शन से द comb run through one's dry hair attract the bits of paper। बचपन से करते आ रहे हैं, when we run the comb through our dry hair, it start picking up the small pieces of paper। Assertion is true। Reason, molecules in the paper get polarized by the charge comb, resulting in net force of attraction। So they said कि मॉलिक्यूल इन द पेपर गेट पोलराइज, हाँ ठीक है, कि जो पीसेस ऑफ पेपर है वो पोलराइज हो जाते हैं, जिसके कारण नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर आ जाती है। अब ये ऐसी एक चीज़ थी जो, बिकॉज मैंने 12th के बना नहीं पाया मैं, बट मैंने इलेक्ट्रोसाइट शुरू किया था जब वीडियो बनाई थी मैंने, शायद जून में बनाई थी। तो उसमें मैंने ये चीज़ बहुत क्लियरली कही थी कि चार्जेस जो है वो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं प्लास्टिक का स्केल ले लूँ वो भी करेगा, ग्लास का ले लूँ वो भी पीसेस ऑफ पेपर को कर रहा है, एंड कोई भी अदर चीज़ ले लूँ, कोई भी वूल ले लूँ, सिल्क ले लूँ, सो सारे के सारे क्या है, पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों कि हम तो कहते हैं कि चार्जेस आर मीन्स रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव इन नेचर, वो रिपेल भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी। सो इन दैट केस सिर्फ अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज द रीजन, इफ वी हैव अ रॉड, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज, एंड आई प्लेस दैट पॉजिटिव चार्ज ऑन द बिट्स ऑफ पेपर, ठीक है, नॉट प्लेस, अप्रोच इज दैट। सो क्या होगा, हर चीज एटम से बनी है और एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि इंडक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं
और न्यूक्लियस रिपेल होके नीचे आ जाता है, हेंस पोलराइजेशन हो जाती है उसमें कि सारा, अगर ये एक बड़ा सा पीस ऑफ पेपर है, इसमें क्या होगा, ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हेंस नेट हमारे पास क्या है, चार्जेस डायपोल क्रिएट हो जाता है, चार्जेस जो है वो पोलराइज हो जाते हैं, जिसके कारण ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अब यही मैं करूं कि मेरे पास नेगेटिव रॉड थी, अब मैं पीसेस ऑफ पेपर को लेके गया तो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज इन दैट केस ये नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव जो है वो नीचे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे और ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो इसको मैंने समझाया था कि ये बाउंड चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, इंडक्शन होती है। सो ये चीज है इसमें। तो हमारा असर्शन रीजन था कि कॉम्ब को जब हम ड्राई हेयर में करते हैं तो अट्रैक्ट करता है, ट्रू था। रीजन है मॉलिक्यूल जो है वो पोलराइज हो जाते हैं, जिसके कारण नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है। सो यस, ये पोलराइज हो गए, ये पोलराइज हो गए, जिसके कारण नेट फोर्स बनी है, ट्रू है, उसका ही रीजन है, ये भी ये है। सो अभी तक सारे ट्रू थे, बट हमने अपने कंसेप्ट क्लियर किए। ठीक, सो आगे देखते हैं इसका। आई होप मजा आ रहा होगा। ठीक, सो नेक्स्ट थिंग, a proton is placed in uniform electric field. It tend to move along the direction of electric field. So assertion है, प्रोटॉन को हमने इन इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, so it tend to travel along electric field. ठीक है, it tends to travel along electric field. So is it true or not? इसके लिए अगेन मैं पहले क्लियर करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती कब, क्या है, मींस हमने कैसे उसको सिग्निफाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट में नहीं जा रहा था कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई थी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट चार्ज, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितनी फोर्स लगा रहा होगा पर यूनिट चार्ज, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, और हम हमेशा इसको टेस्ट कैसे करते हैं, बाय टेकिंग अ टेस्ट चार्ज विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अ टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये आ जाएगी। अगर एक टेस्ट चार्ज में यहाँ रख लूँ, ये आ जाएगी, ये यहाँ ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती है पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज के इनसाइड आती है वो। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये अगेन मैं एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, सो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे ही हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाता है बाय द फॉर्मूला। मेन चीज थी हमें देखना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, और उन्होंने कहा एक प्रोटॉन को यहां रखा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो वो अलोंग द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन जानी शुरू हो जाएगी। यस, ट्रू, बिकॉज ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, अलोंग द डायरेक्शन जाएगी। सो ये ट्रू है। ठीक, next reason, a proton is placed in uniform electric field, experiences a force. A proton is placed in uniform electric field, experiences a force. Yes, ये भी true है कि अगर हम एक प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगी, ऑब्वियसली लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण आई है और वो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा ही करेगा, राइट? या अगर नेगेटिव चार्ज आ रही है तो नेगेटिव वो अट्रैक्ट होगा ही होगा। सो फोर्स तो लगेगी, बट इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द पाथ जाएगी। और रीजन वो क्या कह रहे हैं, रीजन कह रहे हैं
कि उस पर फोर्स लगती है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, फोर्स भी लगती है और अलॉन्ग भी जाती है, बट इसने डायरेक्शन कहाँ बताई? मैंने दोनों चीजें स्पेशली बोल दी कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अलॉन्ग चली जाएगी, पॉजिटिव चार्ज होगा तो यू नो इस अलॉन्ग द डायरेक्शन चली जाएगी, और नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज चली जाएगा वो प्रोटॉन। फोर्स लग रही है बट इसने डायरेक्शन को तो क्लैरिफाई नहीं किया, राइट? कि अवे फ्रॉम द फील्ड क्यों जा रहा है। सो दोनों ट्रू तो हैं बट उसको डिफाइन नहीं कर रहा है। सो इन दिस केस व्हाट विल से कि यस बोथ आर ट्रू, assertion and reason both are true, but reason is not correct explanation of the assertion, right? So ये पहला हमारे पास B वाला आंसर आया कि दोनों ट्रू हैं बट रीजन सही नहीं दे रहे आप। Okay, next, sixth, electric field at the surface of charged conductor is always normal to the surface at every point. Electric field of the charged metal होगा of the charged conductor is always normal to the surface at every point. So perpendicular to surface जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। वेरी ट्रू, ठीक है। मैं हमेशा जब भी सिखाता हूँ तो मैं जरूर बताता हूँ कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना देते हैं। नेवर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल टू द चार्ज या नॉर्मल टू द बॉडी ही निकलती है, चाहे जो सी मर्जी बॉडी हो, ठीक है। कि अगर मेरे पास स्फेयर है, स्फेयर से ऐसे ही निकलेगी। अगर मेरे पास सिलेंडर है, सिलेंडर चार्ज है, यहाँ कोई बीच में पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकलेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट? सो यस, ये हमारे पास ट्रू है। जस्ट अ सेकंड। सो या assertion is our right. Then इसका reason says electric field gives the magnitude and the direction of electric force experienced by a charge at a particular point. तो अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफाइन बताई थी। I told you that what is electric field? Electric field is force, magnitude and direction of the force experienced by a charge at a particular point. So yes, true है। Reason is also true। ठीक है, मैं यहाँ पे हम लगा ही चुके हैं, तो reason is also true, no issues are there, but it is defining it। कि हमने क्या यहाँ पे देखा कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमें फोर्स बताता है, नो रिलेशंस आर देयर, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो इसका भी आंसर बी आएगा। बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ओके, नाउ next is an important one। the potential inside a hollow spherical charged conductor is zero। the potential inside hollow spherical charge is zero। ठीक है, this is our assertion। ये एक होलो स्फेयर है, इसके अंदर पोटेंशियल जीरो है, ये प्रूव करना है। ये assertion है, प्रूव नहीं कर सकते हम। सर इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? नो। ठीक, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। मैं दोनों डिस्कस करूंगा आगे, शायद उसके assertion रीजन मिल भी जाए हमें। सो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर इज जीरो। इनसाइड द होलो जो हमारे पास मेटल होता है, ठीक है, दैट इज जीरो। और पोटेंशियल is not zero, but potential is constant।
ठीक है, आई विल नॉट डू द डेरिवेशन राइट नाउ, बट मैं फॉर्मूला बता सकता हूँ। पहले दोनों इसमें तो है ही जीरो है, ठीक है, इसमें फॉर्मूला वही रहता है के क्यू बाय डी स्क्वायर, ठीक। और इसका अगर मैं ग्राफ बना दूं, चलो ग्राफ बना देता हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है हमारा डी के बीच में। सो वी नो दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। सो डी स्क्वायर का फॉर्मूला ग्राफ कैसा सा होता है, कुछ ऐसा सा, ठीक है, अप टू रेडियस आर, ठीक है, कि सॉरी अप टू नॉट रेडियस आर, अप टू द बेसिकली रेडियस आर बट अप टू द सरफेस, ठीक। यहां पे अगर मैं सरफेस ड्रॉ कर दूं समझाने के लिए, तो आर डिस्टेंस अगर हमारा ये क्या है, रेडियस के अंदर अंदर वाला पार्ट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से जीरो हो गई, और इसके बाहर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। सो रेडियस से आगे आगे तो ये ऐसा चल रहा है, रेडियस के अंदर आके जीरो। ये ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो ये ग्राफ है इसका, लाइक यहाँ पे जीरो है, ये ऐसे है। और पोटेंशियल के केस में क्या होता है, पोटेंशियल बाय रेडियस बाय डिस्टेंस। सपोज यहां तक का डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा उसका, ठीक है, आउटर सरफेस आ जाएगी। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो इट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द आर। ऐसा ही कुछ ग्राफ है हमारे पास आर, उसके लिए भी ऐसा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आर जीरो कर दूंगा V इंफिनिटी हो जाएगा, आर यहाँ पे जीरो हो गया, V इंफिनिटी। और अगर आर इंफिनिटी कर दूंगा, डिस्टेंस इंफिनिटी जा रहा है, तो ये अप्रोचेस टू जीरो। देन सरफेस के इनसाइड इसको समझते हैं, ऐसे है ये, यहाँ अब हम सरफेस पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस कैपिटल आर है। तो सरफेस में क्या हो जाता है, ये है आर, और सरफेस पे ये होगा उसका पोटेंशियल V इज के क्यूब बाय कैपिटल आर, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। पर जब हम सेंटर से अंदर की तरफ आते हैं, मतलब सेंटर से कह रहा हूं, सरफेस से अंदर की तरफ, तो हमने देखा हर जगह पे सेम ही पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, यही मैंने लिखा, पोटेंशियल कांस्टेंट बट नॉट जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक। यह है होलो की बात, होलो स्फीयर्स में। एंड सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, सॉलिड स्फीयर थोड़ा डिफरेंट है इसमें। सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है के आर क्यू बाय आर क्यू, ये कैपिटल आर है, रेडियस वाला, ठीक है। दैट मीन्स आर कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ये आर डिस्टेंस है इनसाइड का, मीन्स ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड द रेडियस। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि बाहर तो सिमिलर ही चेंज होगा सॉलिड में, ठीक है। बाहर का क्या मतलब है, बाहर जैसे डिस्टेंस वेरी कर रहा है वैसे ही है, 1 बाय आर स्क्वायर के साथ। इनसाइड जैसे जैसे रेडियस कम होगा वैसे वैसे ई कम हो जाएगी, और ये जीरो होने पे ये जीरो हो जाएगा, मींस ये जीरो से पास करेगा ऐसे। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सो ये ग्राफ है हमारे पास। देन नेक्स्ट पोटेंशियल के केस में, अगर पोटेंशियल हमारे पास क्या है यहाँ पे, बेसिकली सॉलिड है, सॉलिड में क्या होगा पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला होता है V is K by 2 R cube and 3R square minus X square into cube। सो ये होता है हमारे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला।
ठीक है। अब अगर मैं जीरो कर दूं पोटेंशियल, अगर सॉरी पोटेंशियल कह रहा हूं, एक्स जीरो कर दूं, सो ये क्या आ जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, ये बचेगा मेरे पास 3/2 के क्यू बाय आर एट द सेंटर, इसको इरेज करना, एंड वी ऑन द सरफेस इज के क्यू बाय आर, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये 1.5 है, ये ज्यादा होगा, सेंटर पे ज्यादा है, पोटेंशियल सेंटर पे ज्यादा है, सरफेस पे कम है। और अगर मैं सरफेस पे देखूं तो यही आएगा, चेक कर लो, सरफेस पे एक्स की वैल्यू आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करके यही बचेगा, ठीक है। सो यहां से हमें पता क्या चलता है कि अगर मैं इसका प्लॉट करूं, सो इट वुड बी, बाहर तो वैसे ही कर रहे हैं जैसे यहाँ पे था, इनसाइड पे अगर ये 1 वैल्यू है सपोज, तो ये 1.5 उस टाइम्स, मतलब 0.5 ज्यादा हो जाएगी उससे, है ना। सो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ये आ रहा है। ठीक, तो ये चारों ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, केस स्टडी किसी में भी हो सकता है, राइट। ये 4 ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कर लो, समझ लो, फाइन। अब दोबारा अगेन हम आते हैं अपने असर्शन पे। हमारा असर्शन था कि जो पोटेंशियल है वो इनसाइड द मेटल, होलो कंडक्टर इज जीरो। ये हमने देखा पोटेंशियल जीरो नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, सो हमारा असर्शन ही गलत है। सो पहला केस आया जिसमें हमारा असर्शन फॉल्स है, ठीक है। अब रीजन की बात सुनते हैं, रीजन क्या कहता है। सो रीजन सेज इनसाइड द होलो स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। सो रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हाँ भाई है, ठीक है, तो ये ट्रू है। सो इसका ऑप्शन नंबर है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, नहीं, ए इज फॉल्स, आर इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी नहीं है। सो इट इज, हमारे पास ये आ जाएगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ठीक है। सो ये हमारे पास ई ऑप्शन है इसमें, राइट। तो ये आएगा ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अब एक तो मैं ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, होलो स्फीयर इज कांस्टेंट, तो क्या वो ट्रू होगा? नो, ठीक है, बिकॉज इट इज जीरो देयर। क्लियर? सो आगे करते हैं हम अपना, द नेक्स्ट वन इज electric field lines do not form closed loops. I'll erase it, you may take the screenshot, right? So the next one says electric field do not form closed loops. Yes, true. Magnetic field forms closed loop but electric field do not. Why? पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव के अंदर चली जाएंगी, क्लोज तो हुई नहीं, ठीक है। मैग्नेट में क्या था, पॉजिटिव नॉर्थ से निकली साउथ से अंदर, इनसाइड द मैग्नेट ऐसे, सो इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप। अगर तुमने वो 10th में किया है तुम्हारा सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड में क्या करते हैं, ऐसे सोलेनॉइड है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के ऐसे, ठीक है। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो साउथ नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर, सो इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप। यस, बट चार्जेस जो हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाते। क्लियर? तो असर्शन तो ट्रू है, assertion is true. Let us see its reason. Reason says
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये भी ट्रू है, अभी अभी किया हमने, इससे पिछला ही था कि ये हमेशा नॉर्मल होती है, बट क्या इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है? नो, असर्शन इज ऑल्सो ट्रू, बट इसका आंसर बी रहेगा बिकॉज ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज नो वर्क इज डन in moving a test charge from one point to another over an equipotential surface, right? So यहाँ पे क्या है, equipotential surface, अगर तुम्हें पता है या नहीं पता, I explain equipotential surface। फॉर्मूला कर लिया हमने पोटेंशियल का, it is V is Q, K by R। So अगर मैं कहूँ मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है Q, ठीक है, मैं यहां से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल देखना चाहूं, ये होगी ऑब्वियसली। मैं यहां से यहां r डिस्टेंस पे गया, चार्ज तो इसके कारण ही है, डिस्टेंस आ रही है, k तो बेचारा वैसे ही कांस्टेंट है, तो यहां पे भी v ही होगा, यहां पे भी v है। मैं यहां आ जाऊं, r डिस्टेंस है तो भी v है, यहां चले जाओ तो भी v है, मींस हर जगह पे एट अ पर्टिकुलर सेम डिस्टेंस पोटेंशियल सेम रहेगा। और ऐसी सरफेसेस को जहां पे पोटेंशियल सेम रहता है हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इन केस ऑफ दिस पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी? एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस r इट वुड बी नॉट अ स्क्वायर, नॉट अ सर्कल, 3D में आओ, इट वुड बी अ स्फीयर। ठीक है, यहां से डिस्टेंस r कहीं पे भी, सो एवरीवेयर ऑन द डिस्टेंस r ऑन द स्फीयर इट वुड हैव द सेम पोटेंशियल। ठीक है, सो एट दिस पर्टिकुलर r पोटेंशियल इसका क्या है? सेम है, एंड दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां से यहां पर। ठीक है, इज इट द ओनली पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज? नो, at r1 also this is the equipotential surface, r2 also। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। क्या ये स्फेरिकली है सिर्फ? अगेन नो, ये तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लियर हो जाएगा इसमें से। ठीक, अब अगर मैं कहूं मेरे पास एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज मीन्स एक लाइन है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक ऐसा इंसुलेटर है, ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक है, जिसमें चार्ज जो है हमने दिया है और चार्ज ने एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट करके एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गए, राइट? सो यहां पे क्या है मेरे पास कि जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, so at a particular distance r हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, है ना? हर जगह मेरा जो पोटेंशियल है एट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस r सेम होगा। इसमें शेप कैसे बनेगी? यहां से r डिस्टेंस ऐसे 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 ऐसे, दैट मींस अ कंप्लीट सिलेंडर अराउंड इट विल हैव द सेम पोटेंशियल। सो the potential around it, the equipotential surface around it at distance r1, this is the equipotential surface in the shape of cylinder. Is it the only one? No, r2 पे भी होगी equipotential surface है। now क्या सिर्फ यही है? so again no, spherical भी हो सकती है, cylindrical भी हो सकती है। then अगर मेरे पास एक शीट है, उस पे लीनियर, उस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगी। ठीक है, और हमेशा जो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है एक शीट से, ये तुमने पढ़ा होगा कि ये पैरेलल होती है। क्यों होती है? क्योंकि चार्जेस आपस, जो लाइंस है आपस में रिपेल करती है, जिसके कारण ये
टर्न कर जाती है, विच इज कॉल्ड कर्लिंग इफेक्ट। एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ये आपस में ऐसे रिपेल करके कर्ल कर जाती है, राइट। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, अब ये वाला बंदा, ये वाला अगर मैं कहूं, ये ऊपर भी नहीं जा पा रहा, रिपेल हो रहा है, नीचे भी नहीं जा पा रहा, रिपेल हो रहा है, तो ये स्ट्रेट ही जाएगा और कोई चांस ही नहीं है इसके पास, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाएगा। नाउ अगर मैं इसके आगे एक और पेज रख दूं, हर जगह पे उस सेम डिस्टेंस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सेम पोटेंशियल होगा। सो अगर एक और हम यहाँ पे शीट बना लें, यहां हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, यहां से और डिस्टेंस पे सेम होगा, ठीक है। सो ये प्लेन भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। नाउ अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा, VB माइनस VA इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। 10th में किया था, ठीक है, 10th में किया था दैट वर्क डन per unit charge in bringing a charge from infinity to a point is called potential, and from one point to another is potential difference, ठीक है। So अगर मेरा पोटेंशियल ही सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, मींस वर्क डन जीरो होगा। सो अगर एक चार्ज को मैं यहां पॉइंट A से पॉइंट B लेके जाना चाहता हूं, तो क्या होगा, जब मैं ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा है यहां पे, इसके कारण पोटेंशियल है, जब मैं इसको पास लेके जाऊंगा मुझे करना पड़ेगा, सपोज मुझे पॉजिटिव वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। जब मैं दूर लेके जाऊंगा उतना ही नेगेटिव वर्क हो जाएगा। दूर क्यों, क्योंकि जब पास लेके आ रहा हूं, सो इस पे क्या हो रहा है, इस पे जो वर्क हो रहा है वो इसको अगेंस्ट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगेंस्ट लेके जाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। जब ये क्रॉस कर जाएगा तो ये अपने आप चलेगा रिपेल होके, सो मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो इन दिस वे टोटल जो हमारा वर्क डन है वो जीरो हो जाता है, कि जितना नेगेटिव वर्क है उतना पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, है ना, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं यहां से यहां आ जाऊं, वर्क डन जीरो है, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन जीरो। एक और चीज है वो भी कर लेते हैं, वैसे और भी हैं बट चलो, E डॉट dl भी हमारा VB माइनस VA होता है। सो अगर ये जीरो है, ना तो हमारी E जीरो है ना dl जीरो है, तो cos थीटा जीरो आएगा, और cos थीटा जीरो होता है हमारा 90 पे, तो थीटा 90 डिग्री होगा, मींस स्मॉल dl एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलरली निकलती है। चलो ये हमारा क्लियर हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट। नाउ कमिंग टू द असर्शन। सो असर्शन वाज कि नो वर्क हैज टू बी डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं ढूंढता हूँ कहाँ गया, ये रहा। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। असर्शन सही है। अब आते हैं रीजन पे। रीजन सेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी बताया था, यस नॉर्मल होती है, ठीक है, ये भी ट्रू है, बट क्या ये आंसर उसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा, ठीक है। एक्सप्लेन कैसे करता कि वर्क डन जीरो कैसे है, बिकॉज उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके बताते हैं, या जितना पॉजिटिव हुआ उतना नेगेटिव हुआ वो बताते हैं, ये नहीं कर रहा। तो ये इसका आंसर बी आएगा, दैट असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक। चलो अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, ज्यादा समझाऊंगा नहीं, खत्म करते हैं। क्वेश्चन है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यूब अराउंड अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस एट द सेंटर
आगे आगे करते हैं, थोड़ा सा जो सिंपली तुम्हारे से हो जाए, ठीक है। इसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा वीडियो बड़ी होगी। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस बाय एनक्लोजिंग इन होलो कंडक्टर। बताया था मैंने कि यस हमें अगर किसी सेंसिटिव को प्रोटेक्ट करना है तो हम होलो स्फीयर में रख देते हैं, ट्रू है। पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी इज जीरो। अरे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल जीरो नहीं है, सो ये फॉल्स है, ठीक है। आंसर सी है। सी मींस दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। उसके बाद चलो बाकी बात में करेंगे, मेरा गला नहीं ठीक, ठीक। सो इसके बाकी के असर्शन रीजंस हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आई होप जो आज किए बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पता हो भी सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पता नहीं भी होंगी। सो जो चीज़ें तुम्हें नहीं पता थी वो बताओ मुझे, और जो पता थी तुमने फॉरवर्ड कर दिया उसको, वो भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय।